So good morning, everyone. Beta, let's continue with the chapter number 13, exponential part. Let's continue with our chapter number 13, exercise 13.2, page number 260. Everyone open it. So second question we were doing. Good morning, ma'am. Yes. Yes, Sanchit. Good morning, ma'am. So if anyone will be having any doubt, just raise your hand. Fine. Now, second question. First and second part we did yesterday, right? Now we have to do the third part. So, it is 25 raised to power 4. Now see better this question. In this question, it is written simplified. It is not written using the law. So this you can do like just 25 into 25 into 25 into 25 divided by 5 into 5 into 5. Like this. 5 5s are 25, then 5 5s are 25. And you have to write the answer in exponential form. How many 5 you are left with? ये क्या होता है 5 square? ये क्या होता है 5 square? 5 into 5 square into 5 square. That is 5 raised to power 2 plus 2 plus 4 plus 1 5. ठीक है? ये तो हो गया सिंपल तरीके से कि हमने कटिंग कर दिया. But as it is a small sum, so sometimes this question can be asked like this also, that simplify using the identity. Yes, Bhavesh, switch on your video, then I'll unmute you. दो मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लो, फिर ऑफ कर लेना चाहिए. हरी आप. हाँ जी. हाँ जी, बोलो बेटा. एक्सक्यूज मैम, कनव का फोन आया था, वो कह रहा है Speak loudly, speak loudly. एक्सक्यूज मैम, कनव का फोन आया था, वो कह रहा है मेरे को क्लास में एंटर कर लो. बेटा मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है. एक मिनट देख लेंगे. एंटर है बेटा. कशिश कनव. चलो देखो अब. Okay, Bhavesh. So beta, this is one of the method, or if we have to do this question by using the identity, then how to do? Look here. 25 raised to power 4. What is 25? 25 को हम लिख सकते हैं 5 square. Yes, 5 square. Whole power क्या है? 4. कुछ नहीं किया. 25 की जगह पे क्या लिख दिया? 5 square. Divided by 5 cube. Now here we can apply the law. Power की power, it gets multiplied. So 5, 2 4s are 8. 5 raised to power 8 divided by 5 raised to power 3. Same base, division sign, powers will get subtracted. So 5 raised to power 8 minus 3, 5 raised to power 5 is the answer. Is it clear? So if it is written solved by using law, then you have to follow this method.
Otherwise, you can do in a simple way also. If it is not written, that's all using the identity or using the law. So fourth part homework. फोर्थ पार्ट बेटा सिंपल तरीके से करोगे कटिंग मेथड से, ठीक है। फिर जो भी बचेगा दैट यू हैव टू राइट इन दी पावर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यू विल डू योरसेल्फ। कम टू द फिफ्थ पार्ट। थ्री रेज टू पावर 7 divided by 3 raised to power 4 into 3 cube. Now there are two ways. एक तो ऊपर कितनी टाइम्स है 3, 7 टाइम्स खोल के लिख दो, नीचे भी खोल के लिखोगे 4 और 3 7, सारे 3 3 आपस में कट जाएंगे। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम काटते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बचता है 1, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल। आप सीधा करोगे। अगर नहीं लिखा सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ तो आप सिंपल तरीके से करो, यू विल गेट फुल मार्क्स। बट whenever the teacher set the paper, तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कभी ऐसे नहीं आएगा सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि टीचर भी देख रहा है कि हाँ ये बहुत सिंपल है। सो सच सिंपल क्वेश्चन यू विल नॉट गेट लाइक ओनली इन सिंप्लीफाई, इट विल ऑलवेज बी रिटर्न दैट सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ, राइट। जो क्वेश्चन पे लॉ लगकर सॉल्व हो सकता है इजीली, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वहां पर लॉ लगाने को बोलेंगे टीचर, ठीक है। सो देखो इधर कैसे लगाएंगे लॉ। 3 raised to power 7. Now see the denominator. In the denominator, you can see you have same base, different powers. सिर्फ denominator को देखो। So we can apply here the law. First law, a power m whole power n, ठीक है। It is equal to a raised to power m plus n. So it will become 3 raised to power 4 plus 3 raised to power 7 divided by 3 raised to power 7. Further, now you can cut and write the answer 1, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये क्या हो रहा है डिवाइड, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या होती हैं माइनस। 3 raised to power 0, answer will be 1. Why? Because anything raised to power 0 is 1. So in this question, how many laws we have applied? We have applied 3 laws. Same base multiply जिसमें पावर्स को ऐड किया, फिर same base divide जिसमें पावर्स को माइनस किया, and then we applied the law that anything raised to power 0 is 1. So this is our answer. Am I clear? So if it is written solve using law, then you have to do like this and write the laws also. Fine. See the sixth part. Very easy. We have done the law. Anything raised to power 0 is 1. So 2 raised to power 0 is 1 plus 3 raised to power 0 is also 1 plus 4 raised to power 0 is 1. So the answer is 3. Answer is 3. Note down. And yes, you have to write the law that a raised to power anything raised to power 0 is 1. This law carries marks. Law नहीं लिखोगे marks कटेंगे. ऐसे ही 7th पार्ट खुद करोगे बेटा। 7th पार्ट में क्या है, मल्टीप्लाई, anything raised to power 0 is 1. Look 7th part in your book. 2 raised to power 0 into 3 raised to power 0 into 4 raised to power 0. So you will get 1 multiplied by 1 multiplied by 1. The answer will be 1 only. What will be the answer? 1. इस पार्ट में हमने क्या किया था, प्लस हो रहे थे, तो आंसर इज 3.
So you know anything raised to power 0 is 1, but आपने देखना ऑपरेशन कौन से हैं, प्लस है, मल्टीप्लाई है, कहाँ डिवाइड है, कहीं कहीं माइनस है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे 8 पार्ट में आपके पास है, लुक हियर, 3 raised to power 0 plus 2 raised to power 0 into 5 raised to power 0. Ayushi, switch on your video. Now see this sum 8 part. 3 raised to power 0 is 1. Then plus 2 raised to power 0 is also 1. Multiply. 5 raised to power 0 is also 1. कोई भी नंबर की पावर 0 है तो उसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया. Now we have to see what is the mathematical operation. Bracket में क्या है? 1 plus 1 2 multiply by 1. So the answer is 2. क्या बोर्ड पे देखो बेटा, आपके पास ये सम था, पहले आपने डिनोमिनेटर में लॉ लगाया है, सेम बेस डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड. 4 plus 3 7, ये आया आपके पास. अब ये डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड. बेस इसको ऐसे 3 raised to power 7 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 7, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे. सेम बेस, अब पावर भी चाहे सेम है, लेकिन अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं. 7 minus 7 क्या आएगा, 3 raised to power 0. So anything raised to power 0 is 1. So 3 raised to power 0 is 1. आप इधर ऐसे कट करके ऐसे भी आंसर लिख सकते हो 1, तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ तो लॉ लगा दिया. ठीक है, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, और अगर लॉ लगाना नहीं लिखा तो चाहे खोल के कर दो सिंपल तरीके से. फाइन. 9th पार्ट देखिए. 2 raised to power 8 into a raised to power 5 4 cube into a cube. Now see, try to solve it. हाँ जी. नाउ बोर्ड पे देखो बेटा, ऊपर कितने ए हैं, 5, नीचे कितने ए हैं, 3. हम काट देंगे, ऊपर कितने ए बचेंगे, ओनली 2. 2 into 2 into 2. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divided by 4 into 4 into 4. Yes, भव्या. एक्सक्यूज मैम, इसी सम में जो नीचे लिखा हुआ है 4 क्यूब एंड मैम a क्यूब, तो मैम उसमें बेस एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो मैम हम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं 4a बाय उसकी पावर 3. क्यों करना है भव्या वैसे, मैम क्योंकि उसकी पावर सेम है. बेटा ठीक है, पावर सेम है, आप लिखोगे 4a raised to power 3. उसके बाद क्या आपने लिखा, कटिंग भी तो करनी है ना. वी हैव टू सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई का मतलब होता है जब तक उसको जो भी कटिंग, जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे पावर सब्ट्रैक्ट होती है या जो चीज कटिंग होती है वो कट करना है. आपने उसके साथ उसको कंबाइन कर दिया, फिर आगे सम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. नो, नो नीड टू डू लाइक दैट. अगर सिर्फ इतना आया हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो 4a पावर होल क्यूब. बट अभी नहीं करने की जरूरत, अभी तो हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने उसको कंबाइन थोड़ी करना है. जो ऑलरेडी अलग अलग है उसको कंबाइन क्यों करना है. नो, यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दैट. ठीक है, अब मैंने फर्स्ट स्टेप में ही काट दिया,
आप चाहे फर्स्ट स्टेप में नहीं काटना चाहते तो यहाँ पे भी लिख सकते हो a raised to power 5 into a cube, तो सेकंड स्टेप में काट दो। अब देखो 2 2 जा 4, एक 4 गया, 2 2 जा 4, एक और 4 कैंसिल, 2 2 जा 4 इसके साथ गया। व्हाट इज द आंसर? 2 2 जा 4, a square is our answer. नेक्स्ट 10th पार्ट देखिए बेटा, सेम बेस डिफरेंट पावर्स, डिवाइड साइन, या तो लॉ लगा दो, a रेज टू पावर क्या लगाओगे 5 minus 3 into a raised to power 8. Yes, a raised to power 5 minus 3, what it will be? A square into a raised to power 8. और अगर लॉ नहीं लिखा तो सीधा काट के भी लिख सकते हो कि यहाँ ऊपर 5 टाइम्स a है, नीचे 3 टाइम्स a, कट जाएंगे तो ऊपर कितने a बचेंगे 2। ये स्टेप आ गया कटिंग करने के बाद या माइनस करने के बाद। आई होप आई एम गेटिंग, यू आर गेटिंग, एम आई क्लियर टू यू? या तो कटिंग करके लिख दो बेटा a स्क्वायर, या पावर्स को माइनस करके लिख दो a स्क्वायर। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि लॉ लगाने को कहा है या नहीं। नहीं कहा तो कटिंग करके भी लिख सकते हो। अब आगे सेम बेस डिफरेंट पावर्स, मल्टीप्लाई, लॉ लगेगा a रेज टू पावर 2 plus 8 a रेज टू पावर 10 आंसर। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो एंड नोट डाउन, एनी डाउट प्लीज आस्क। देन बेटा 11 पार्ट यू विल डू योरसेल्फ, कटिंग से ही करना है, ठीक है, कटिंग करके करना आपने। कम टू द 12th पार्ट, 12th part is very easy, look here on the board. 2 cube into 2 whole square, सी बच्चे this 2 means what? ब्रैकेट के अंदर पावर क्या है 1, सेम बेस डिफरेंट पावर्स, मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन, so 2 raised to power 3 plus 1 whole square. It is 2 raised to power 4 whole square. Here you have to write the law. First law, a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. Now which law will be applied here? Power की power. So 2 raised to power 8. 6 नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करना है, 4 2s are 8. ठीक है बेटा, now see question number 3. Say true or false and justify your answer. Question number 3, first part. 10 into 10 raised to power 11 is equal to 100 raised to power 11. Is it true or false? True or false? Yes? Tell me.
हाँ जी पवनदीप। ट्रू। ट्रू। हाँ जी भव्या। क्लास लगी मेरी। मैम फॉल्स। फॉल्स। ओके यस सुहाना। फॉल्स। फॉल्स। ओके पवनदीप ट्रू कैसे है ये बताओ। मैम जी पता है ये ना मैंने गलत बोल दिया कि पता क्या ये ना 1 नंबर कम आता है क्या जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 11 मैम ये फॉल्स है मैम मुझे ना मतलब फॉल्स क्यों है। क्योंकि मैम ए जी हम ट्रू करें तो नहीं बनता फॉल्स है 1 नंबर कम आना चाहिए 1 नंबर कम आना चाहिए। 10 इंटू जैसे 10 टू पावर 11 का आंसर क्या आएगा पवनदीप आप बताओ मुझे। अगर हमने इसको सॉल्व करना हो तो आंसर क्या आएगा। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 वही करना हमने 10 मल्टीप्लाई आंसर बताओ आंसर। बताओ बेटा। कितना टाइम पवनदीप सारा चैप्टर कर लिया है। आंसर आएगा शायद मेरे हिसाब से 1100 हाँ जी आपकी आवाज नहीं सुन रही है एक तो मुझे बिल्कुल। 1100 कुछ इसका मतलब बेटे आपको समझ नहीं आया पवनदीप। यस यस ठीक है तो भैया जी। यस बानी। यस मैम। हाँ जी इसका आंसर क्या होगा बेटा। मैम फॉल्स बिकॉज अगर 10 के ऊपर कोई पावर नहीं लगी इसका मतलब उसकी पावर 1 है। वन और है ओके। बेस आर सेम तो हम लॉ अप्लाई करेंगे कि 1 प्लस 11 बिकॉज मल्टीप्लाई का साइन है 1 प्लस 11 इज 12 10 Yes. इंटू 10 100 12। यस यस बानी यू आर राइट एंड पवनदीप बेटा वेरी बैड। It means you are not revising the things at home after the class. Each and every question I have taken in the class and again the same thing I have repeated. You have this. You will write it is false because. Because होता है ये चाहे because लिख दो। अगर हम ऐसे डॉट डालते हैं ट्राइंगल के फॉर्म में उसका मतलब होता है therefore। अगर ऐसे डालते हैं इसका मतलब होता है because। ठीक है रीजन क्या है 10 रेज टू पावर 10 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 इंटू 10 रेज टू पावर 11 सेम बेस multiply sign different powers so the powers will be added 10 raised to power 1 plus 11 that is 10 raised to power 12 ये 10 raised to power 12 होता है ना कि 100 raised to power 11। second part is obviously true। एक मिनट ये क्या लिखा है 5 है 2 क्यूब एक मिनट सॉरी बेटा व्हाट इट इज हियर इट इज मिसप्रिंटेड। सेकंड पार्ट में 2 क्यूब इज ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में एनीवन। यस भव्या मैम 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर यस मैम। 5 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर 2 क्यूब क्या होता है 8 5 स्क्वायर क्या है 25 so it is obviously false। it is false। आप ऐसे करोगे 2 क्यूब 8 इसको 25 लिख दोगे false बस फिर जस्टिफाई लिख दोगे बिकॉज पता ही जस्टिफिकेशन में आपने सॉल्व करके दिख दिया तो false लिख दिया वो क्लियर है। अब उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 8 is smaller than 25 no need to write सॉल्व कर दिया that is the justification।
थर्ड पार्ट, 2 cube into 3 square. Now beta you can see the left hand side, ना तो आपके बेसिस सेम है ना पावर सेम है. लॉ लगाने के लिए या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो, कोई एक चीज तो सेम होनी चाहिए. अगर बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, और अगर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब दोनों में से कोई चीज तो सेम होनी चाहिए, ठीक है. बट हियर नो बेस, नॉट द बेस इज सेम नीदर द पावर, तो इससे कोई लॉ नहीं लगेगा. इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे. 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू 6 रेज टू पावर 5. ये आ गया 72. ऑब्वियसली 72 और 6 रेज टू पावर 5 तो काफी बड़ा नंबर आएगा. 6 is 36, 6 are 216 and so on. So it is not equal, it is false. This is the justification. ये नहीं कि इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी ऐड कर दिया, ऐसा कोई लॉ नहीं है. Fourth part is true because 3 raised to power 0 is also 1 and 1000 raised to power 0 is also 1. So 1 is equal to 1 and it is true. Now question number 4 is same as the question which we have done in the first exercise. Express each of the following as a product of their prime factors in exponential form. So I will take only 1/3 part and the homework is first part and fourth. Question number ये 2 था, 3 में से आप करोगे फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में से आप करोगे बेटा first and fourth. I will take third. Now here it is what? पिछली एक्सरसाइज में हमने जब क्वेश्चन किया था वहां पर हमारे पास सिंगल नंबर था. सिंगल नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने थे. यहाँ पर क्या है? डबल नंबर. 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं. क्या करोगे? दोनों नंबर्स के अलग अलग से प्राइम फैक्टर्स बनाओगे. 3 से जाएगा ये, ठीक है. 64, राइट. देखो 729 into 64 is equal to 729 कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 6, 3 raised to power 6 और यहाँ 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 6. फर्दर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 2 6 raised to power 6 और यहीं पे छोड़ दो. प्राइम फैक्टर्स की पावर करनी है ना, तो 6 नहीं करोगे, नहीं छोड़ दोगे. 3 raised to power 6 into 2 raised to power 6. ठीक है बच्चे. I hope all the question is clear. Any doubt? So we'll do the next question tomorrow. And beta, tomorrow is Saturday. And you people are having your 4th period now tomorrow. ठीक है. कल फिर ध्यान से एंट्री करना. 3rd पीरियड आपका जो भी है अपने टाइम टेबल को देख लेना. 4th पीरियड इज ऑफ मैथ्स. ओके. टेक केयर. सी यू टुमारो.